गुड मॉर्निंग वोरा सर एंड ऑल द टीम मेंबर्स हियर। आज मैं अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सल वेल्डिंग कार्ड और जिसमें हमारे 5 ग्रुप मेंबर है। हमारे गाइड है एम ए वोरा सर। और यहाँ मैं कंटेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा। कंटेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन, सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन, डिजाइन ऑफ प्रोटोटाइप, product specification, cost estimation, comparison, and last mass production and future scope. In conclusion, so introduction से start करते हैं. The universal welding card that will be prepared by my team and is a welding card that allows the user to freely store the frequently used machine and ease the operation. The welding card is the needed that has been identified from the discussion from the welders of fabrication shops and welders of the small scale industries. The welding machines can be bulky and heavy, and it is very tedious to task to move them manually. To reduce the welding time and improving the condition of the welders, our team has introduced the idea of the universal welding card. Literature review analysis of mechanical properties of the mild steel, applying various heat treatments, quality and property of the cast iron produced on the steel scraps basis, joining of the sheet metal using different welding processes. Now I'm come to the problem definition. Uh, in the modern industries, in the modern industrials, welding and joining has been important part of the daily industrial workers. One of the main problem of the workers face is the welders movement. The rotation is restricted when the machine itself is fixed. So if the welders has moved to the machine from the one place to another place, it sometimes isn't possible. Moreover, the welders can save a significant amount of the time and energy if these activities can be reduced or terminated. Due to this problem, our team has proposed the idea of universal welding card. And now I'm come to the solution. To overcome the difficulties mentioned earlier, the universal welding card is conceptualized. UWC, Universal Welding Card, is a structure that provides a mobility to the commonly used welding machines. By doing this, the welder's efficiency can be improved significantly. Objectives: to provide comfort to the worker, to increase the efficiency, to save the time of production, to improve the safety of welder, to attain the improved health of worker, to provide flexibility of the machine, to ensure the safety of welding machine, ensure the durability of the machine, to improve the expected life of the welding machines. Practical simplification: reduce human effort, target the small scale industries and the medium scale industries, best suitable for MIG and TIG welding machines, helpful for scale fabricators. Polarity won't be affected as wheels are composed of plastics, useful for garages and other commercial uses. Ease of the availability as low cost. Design of prototype. There are 3 designs. One is made by Nandan in AutoCAD. Secondly is drawn by me by my hand. And now I'm come to product specification. Product dimension is 100 into 80 into 100 centimeters. MS road dimension is 2 into 2 into 0.2 centimeter. MS sheet dimension is 100 into 80 into 2 mm. One nozzle, and the second one is 80 into 65 into 2 centimeters, the 2 nozzles. Material weight load is 100 kg. Weight of the structure is 50 kg. Full gross weight is 220 kg. MS grade uses 18 kg plate and approximation 12 kgs. Future scope. The project future scope is the universal welding cards can be worked with a great efficiency in the industrial in the near future. Ensuring the safety of engineers and machine, UWC can be used in sort of the industries where welding is a compulsory act. As the efficiency of the total money can be saved, the entire process, thus the startup will encourage. Apart from the industry, the universal welding card can be used in small shop fabrication. Conclusion: to conclude the topic, UWC can be useful to various applications in the near futures. The idea of the machine will proven by
proven to be very firm basis the startups and will proceed towards a safe industrialization. The idea can be targeted to personal use and industrial use, describing the wide range of the application. The future advancement in the machine will be increased its efficiency and will give you a better prospect. Here are some reference. We are using the authentic journals and research paper to study our project. Here I am end of my presentation. Thank you, Mr. Vora, sir. Hello. Okay, there are the variety of problems. There are the number of areas in which a projects to be prepared, such as process optimization. There are the different welding defects and the testing, then process parameters and the material related problems. So why you have chosen this project? सर सर ये प्रोजेक्ट हमें सबसे बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट में हम छोटे से छोटे वर्कर से लेके बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तक हम टारगेट कर सकते हैं सर। सभी के आजकल वेल्डिंग इतनी एडवांस हो गई है और हर जगह यूज होने लगी है। ऑलमोस्ट एक एरिया में सर 5,000 जैसे वेल्डर्स होते हैं अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। और सर हर जगह पे ये लोग बिना सेफ्टी के सर ये लोग काम करते हैं, तो हम ये प्रोजेक्ट से हम उनको बेस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके और ये यूनिवर्सल वेल्डिंग कार्ड का हम यूज करते हैं और उसका यूज नहीं करते, तो दोनों में क्या अंतर रहता है? क्या हमें फायदा मिलता है या क्या डिफिकल्टी रहती है दोनों में? यस सर, यूनिवर्सल वेल्डिंग कार्ड का जब हम यूज करते हैं सर, तो हमारे जो मशीन होते हैं जो 50,000 से ऊपर के आते हैं, हम स्टार्टिंग बात करते हैं वेल्डिंग मशीन की। सर क्या होता है कि हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं सर, मतलब कि हम उसको पोर्टेबल जैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमको कहीं पे यूज करना है, कोई जगह पे हमको ले जाना है, और ये क्या है कि सर कि हम सिर्फ एक मशीन नहीं रख सकते, हम इसमें 3 से 4 मशीन का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और वेल्डिंग रिलेटेड सभी फैसिलिटीज हम इसमें रख सकते हैं, जिसमें हम उसमें उसके ग्राइंडर आ गए, कटर्स आ गए। हेलो सर, ओके कंटिन्यू। उसके ग्राइंडर्स आ गए, कटर आ गए, उस सबका हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें हम एक साथ कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं सर। और अगर हम यूनिवर्सल वेल्डिंग कार्ड का यूज नहीं करते तो सर हमें वो सारी चीजें बाय मैन्युअली हमको ले जानी पड़ती है। ओके, ये प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या सीखा है, क्या लर्न किया है? सर इस प्रोजेक्ट में मैंने वेल्डिंग स्किल सीखी, ग्राइंडिंग सीखा, मटेरियल कटिंग की वो सीखा, ड्रिलिंग सीखा है सर। और इसमें मेनली सर जो हमने सीखा है वो हम रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे चीज को एनालिसिस करने का, डिजाइन के बारे में सीखा है, कैड सीखा है, ये सारी चीजें। ओके, आपने किस तरह का लिटरेचर पढ़ा है इस प्रोजेक्ट के लिए? सर पर्सनली हम बात करें तो मैंने डिजाइन और प्रोटोटाइप पे ज्यादा फोकस किया था इसमें, और वेल्डिंग्स के पैरामीटर्स के हमने लिटरेचर रिव्यूज पढ़े, वेल्डिंग कार्ड्स कैसे बनते हैं उसके लिटरेचर रिव्यू हमने पढ़े इस पर। ओके ओके, किस टाइप की स्किल और कौन सी स्किल इस प्रोजेक्ट में आपकी डेवलप हुई है? सर सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो ग्राइंडिंग से लेके लेथ मशीन से लेके हमने जो भी मशीन वर्कशॉप में होती है और जिससे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हमने यूज किया है। सबसे पहले उसमें वेल्डिंग मशीन से सीखा है, वेल्डिंग करने का, कटर से सीखा है, ग्राइंडिंग सीखा है, लेथ मशीन पे हमने अपनी जॉब फिक्स करके उसके डायमेंशन लेने सीखे है, उसमें मार्किंग करने सीखा है। सब कुछ जो बेसिक से लेके एक वेल्डिंग कर सकते हैं सब कुछ टेक्निक्स हमने सीखा है। वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में क्या सीखा है? तो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में कैसे आर्क जनरेट कैसे करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं, और कैसे एक प्रॉपर वेल्डिंग लेंथ हम कर सकते हैं, आर्क लेंथ हम जनरेट, वो सीखा है। वेल्डिंग कार्ड बनाते वक्त आपने कौन से पैरामीटर कंसीडर किए हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से? सर वेल्डिंग कार्ड बनाते समय हमने जो उसके डायमेंशंस है वो सभी हमने चेक किए कि इस पे कितनी स्ट्रेंथ और वो पड़ सकता है, कितना इस पे लोड आएगा, वो सब चेक किया। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू के सब पैरामीटर्स हमने चेक किए थे।
और उसके बाद हमने मटेरियल पैरामीटर्स हमने चेक किए कि कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा, सूटेबल रहेगा इस पे। वो सारे पैरामीटर्स हमने रिसर्च के बाद चेक किए। ओके, ये प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था? सर ये प्रोजेक्ट में मैंने डिजाइन, सबसे पहले डिजाइन मैंने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट में 2D डायग्राम्स बनाने के लिए। रिसर्च पहले स्टार्ट हुई जब प्रोजेक्ट से, तो पहले रिसर्च हुआ, फिर हमने जब डिसाइड किया कि ये वेल्डिंग कार्ड बनाना है, तो मैंने एमजीएम के लिए जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था उसके लिए डिजाइन बनाए। सभी 2D डायग्राम्स इसमें मैंने ही बनाए हैं। और डिजाइन के बाद मैंने इस पे रिसर्च पेपर जो इस पे स्टार्ट किया। फिर हमारे जब एसएसआईपी के लिए हमने प्रेजेंटेशन किया था, तब हमने रिसर्च जो किया था, तब जो हमने कॉस्टिंग और एनालिसिस किए थे, मार्केट सर्वे किए थे, वो सब मैंने, मतलब उसमें मेरा भी हाथ था सर, मैं भी गया था उससे। और ओके, ये वेल्डिंग प्रोजेक्ट, जब हमने किया। ओके, ये प्रोजेक्ट से आपने जो भी सीखा है, जो भी लर्निंग किया है, लर्न किया है, उसको आप कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? सर ऑब्वियसली सर, इस प्रोजेक्ट से जो भी मैंने सीखा है वो मैं अपनी आने वाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बीटेक में यूज करूंगा हमारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे अगर मेरे को वेल्डिंग सेक्शन में अगर वो लोग ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो मैं वहाँ पे इसमें यूज करूंगा। ओके, आपकी प्रोजेक्ट की जो कार्ड है, आपका जो प्रोजेक्ट का कार्ड, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है? कैसा आप उसका स्पेसिफाई या उसको कैरेक्टराइज करोगे? सॉरी सर। उसका स्पेसिफिकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ क्या है, उसका कितना वेट कैरिंग ओके सर। कैपेसिटी है, एटसेट्रा। ओके सर। सर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी लेंथ है सर 100 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ है 80 सेंटीमीटर, और उसकी, उसमें हमने दो पोर्शन में रखा है। और उसमें जो दो प्लेट्स लगेगी, जो एमएस प्लेट 18 गेज की है सर, जो 220 to 50 kg तक आराम से एक्सेप्ट कर, आराम से वो लोड सहन कर सकती है सर। और उसके जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 220 kg है। हमारा जो स्ट्रक्चर का वेट है वो 50 kg है। और जो हम इसमें टॉलरेंस के साथ रखेंगे, तो ये सर 250 to 300 तक क्या लोडिंग कैपेसिटी कर सकता है। ओके, ओके, और कोई डिफिकल्टी आपने फेस किया इस प्रोजेक्ट में? सर लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी फेस की है सर इस प्रोजेक्ट में हमने। सर जब ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ तब हम फैब्रिकेटर से मिले, तो फैब्रिकेटर का जो मार्केट सर्वे हुआ उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे वेल्डिंग्स के लोग काम करते हैं। मतलब बहुत पुराने टाइप के वेल्डिंग मशीन है, बहुत नए टाइप के मशीन है। तो हमको पहले तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी टाइम लगा कि कितने टाइप के वेल्डिंग मशीन मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि हम एक शॉप पे गए थे, फैब्रिकेशन शॉप पे, वहाँ पे वो जो मशीन था वो 1940 का था सर। वो मशीन से लेके नए मशीन की तक हमने उसकी पूरे 5-10 जैसी दुकानें हमने सर्च किया, उसमें हमने कुछ 50 जैसे मशीन चेक किए, तो एकदम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के थे। तो सर पहले तो ये मशीन के हमने जो देखे, वो सब हमारे लिए कैसे डिजाइन में सेट करना पॉसिबल हुआ वो हमने चेक किया। और फिर सर जब हम ये बनाने मटेरियल परचेसिंग करने गए, तो उसके गेज और वो सब डिसाइड करने के लिए हमको काफी प्रॉब्लम हुआ सर। मतलब कि पूरा नॉलेज, पूरा स्टडी करना पड़ा उसका। ओके, शायद ये कोरोना की सिचुएशन नहीं होती और कॉलेज ओपन रहता तो आप और क्या क्या कर सकते थे? सर अगर कोरोना की सिचुएशन नहीं होती तो हम इस प्रोजेक्ट को फिजिकली कंप्लीट करते, और इस प्रोजेक्ट को हमने जितना बोला था कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उससे कई कई हद तक बेहतर बना सकते थे। क्योंकि हमारा जो काम था वो हमने काफी जल्दी खत्म कर दिया था। और उसके बाद कॉलेजेस बंद हो गए। अगर कॉलेज स्टार्ट होते और हमें काम करने का मौका मिलता, तो हम इस प्रोजेक्ट को जैसा बनाया था, जैसा हमने सेट किया था डिजाइन में, वैसा ही हम कंप्लीट करते फिजिकल मॉडल के साथ। और उसके हम कुछ एडवांटेजेस, ब्रेक सिस्टम जो रखने का बाकी था, ब्रेक सिस्टम हम रखते उसमें। और उसमें सेंसर सिस्टम भी हमने रखने का सोचा था, तो वो भी हम सर ऐड करते। ओके, एज ए इंटरनल गाइड एंड कॉलेज का सपोर्ट कैसा रहा? सर इंटरनल गाइड आपकी बात करें तो आपने हमको पूरी तरह से, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लास्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने पूरा सपोर्ट किया। हम जहाँ भी हमको जरूरत पड़ी आपने हमको पूरी तरह से गाइड किया। और एचओडी सर की बात करें, एचओडी सर की बात करें तो एचओडी सर ने हमको एसएसआईपी प्रोसीजर में और हमारे वर्कशॉप यूज करने से लेके सब हर चीज में हमको हेल्प किया, पूरे मशीन यूज करने में। और सब संकेत सर ऑल्सो। ओके, 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 वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच।